السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں متعدد فیصلے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو غیر ملکی براڈ کاسٹرز کو کھیلوں کے مقابلوں کے نشریاتی حقوق کی مد میں ادائیگیوں کی اجازت۔ سید طارق محمد الحسن کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال تعینات کرنے کی منظوری۔ دہشت گردی میں ملوث دوہری شہریت کے حامل ملزم عرفان قادر بھٹی کو ناروے کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ نگران حکومت نے مختصر عرصے میں معاشی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ سازگار کاروباری ماحول، نجی شعبے کے سہولیات کی فراہمی اور محاصل میں اضافے کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ امید ہے آئندہ منتخب حکومت پالیسیوں کے تسلسل سے مجموعی معاشی ترقی کا سفر جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی صنعت کاروں کے وفد سے گفتگو۔ حکومت سازی کے لیے رابطے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس۔ معاملات میں پیش رفت، سفارشات کو حتمی شکل دینے کے لیے قیادت سے مشاورت کے بعد تیسرا راؤنڈ کل ہوگا۔ آزاد ارکان سے سیاسی جماعتوں کے رابطے، خانوال سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے رضا حیات ہراج پینل کی مسلم لیگ نون میں شمولیت۔ قوم کا مینڈیٹ ہے کہ سب مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحادی حکومت بنا رہے ہیں۔ عوامی مشکلات کے حل میں منتخب نمائندوں کا تعاون اہمیت کا حامل ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی گفتگو۔ پیپلز پارٹی نے اپنے منشور پر الیکشن میں حصہ لیا۔ سیاسی استحکام چاہتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی نیوز کانفرنس۔ موجودہ صورتحال مشکل فیصلوں کی متقاضی ہے۔ اداروں کو نشانہ بنانا ملک کی خدمت نہیں، تحمل اور صبر کے ساتھ معاملہ فہمی کا وقت ہے۔ سب کو قومی ایجنڈے کی تیاری اور مفاہمت کی دعوت دیتے ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہوگا، پاور شیئرنگ نہیں کریں گے۔ عمر ایوب خان وزارت عظمیٰ، جبکہ میاں اسلم اقبال پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا اعلان۔ انسانی وسائل کی ترقی میں تعلیمی اداروں کا کلیدی کردار ہے۔ خود مختار جامع معاشرے اور پائیدار ترقی کے لیے تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی شعبے میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے نجی اور سرکاری شعبے میں تعاون ناگزیر ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ پاک بحریہ کی جنگی مشق سیز پاک، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کوسٹل اور کریک ایریاز کا دورہ۔ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دفاعی حکمت اور جنگی تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ افسروں اور جوانوں کی بے لوث لگن اور عزم کی تعریف۔ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ایڈمرل نوید اشرف۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ رفح اور خان یونس پر حملوں میں شدت، مزید 87 فلسطینی شہید۔ مجموعی تعداد 28,663 ہو گئی۔ صہیونی فوج کے النصر اسپتال کے اطراف بمباری۔ شہریوں کو ایک بار پھر رفح شہر چھوڑنے کا حکم۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا رفح پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش۔ زمینی حملے کے فلسطینی شہریوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، کینیڈا کا انتباہ۔ جرمنی، فرانس، ترکی اور مصر کا بھی اسرائیل سے رفح میں جارحیت بند کرنے پر زور۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سے فلسطینی عوام کا قتل عام بند کرانے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ۔
मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों का सिलसिला जारी। श्रीनगर, इस्लामाबाद, पुलवामा, शुपियां और कुलगाम में काबिज फौज के छापे, बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारियां। हुर्रियत क़यादत की जाबिराना इक़दामात की शदीद मजम्मत, जिद्दोजहद आज़ादी को मंतक़े अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा। भारत में किसान सरापा एहतजाज, मोदी हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च जारी। किसानों के रेलवे ट्रैक बंद करने की धमकी, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। महकमा मौसमियात की हफ्ते से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। 17 से 20 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में वक्फे से बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, बुनेर, सवात, एबटाबाद, पिशावर, चारसद्दा और मानसहरा में भी बारिश मुतवक्की। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकाम गंगा चोटी में 4 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में सियाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। फेस्टिवल में स्केटिंग, स्कीइंग समेत मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत से इनकार वजह बनी। हारिस रऊफ को 30 जून तक किसी भी गैर मुल्की लीग के लिए एनओसी जारी ना करने का भी फैसला। मोहम्मद हफीज का बतौर डायरेक्टर क्रिकेट पीसीबी में किरदार भी खत्म। और पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन 2 दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। इफ्तिताही मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हफ्ते को खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। काबीना ने पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स को खेलों के मुकाबलों के नशरियाती हुकूक की मद में अदायगियों की इजाजत दे दी। इजलास में दहशत गर्दी में मुलव्विस दोहरी शहरियत रखने वाले मुलजिम इरफान कादिर भट्टी को नॉर्वे के हवाले करने का भी फैसला किया गया। इजलास में काबीना ने सैयद तारिक मोहम्मद अल हसन को मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल तैनात करने की भी मंजूरी दी। काबीना ने वजारत तिजारत की सिफारिश पर अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान कंट्री ऑफिस के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और नए टायरों की कराची पोर्ट से काबुल मुंतकली की मंजूरी भी दी। ये स्पेयर पार्ट्स और टायर अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तेमाल में होंगे और उन्हें कारोबारी इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। वजारत दिफाई पैदावार की सिफारिश पर सेक्रेटेरिएट ग्रुप के ग्रेड 20 के अफसर खान नवाज की हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में बतौर मेंबर फाइनेंस दोबारा तैनाती की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने वजारत खजाना की सिफारिश पर जेएस बैंक के स्पॉन्सरिंग शेयर होल्डर्स शबीर अहमद रंदीदी को बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना देने की मंजूरी दी। इजलास में काबीना कमेटी, तवानाई, कानून साजी के अमूर की कमेटी और इक्तसादी राबता कमेटी के इजलासों में किए गए फैसलों की भी तौसीक की गई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में माशी बहाली के लिए भरपूर इकदाम किए। साजगार कारोबारी माहौल, निजी शोबे को सहूलियात की फ्राहमी और टैक्स आमदन में इजाफे के लिए इकदाम के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है आइंदा मुंतखब हुकूमत पॉलिसियों की तसलसल से सनती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे से रोजगार के मौके और मजमूई माशी तरक्की के इस सफर को जारी रखेगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में सेनेटर नुमान वजीर की क़यादत में स्टील की सनत से वाबस्ता वफ्द से गुफ्तगू में कही। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया। FBR इस्लाहात और खुसूसी सहूलत काउंसिल के क़याम के बाद मुल्क में सरमायाकारी का ये बेहतरीन मौका है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को स्टील की सनत से मुंसलिक तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। वफ़द ने सरमायाकारी में इजाफे, सनतकारों के मसाइल के हल, FBR में इस्लाहात और मईशत की बहाली के लिए इक़दामात पर निगरान हुकूमत की कोशिशों को सराहा। उन्होंने स्टील की सनत की तरक्की के लिए तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर आज़म ने FBR और मुतालिका वजारतों को इन तजावीज़ पर गौर करने और हतमी शक्ल देने की हिदायत भी जारी की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया, जिसमें हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। तय किया गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुशावरत की तीसरी नशिस्त कल होगी।
इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर इसाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान शरीक हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, सरदार बहादुर खान, नदीम अफजल चंद और शाजी खान शरीक हुए। हुकूमत साजी के हवाले से इजलास के दूसरे दौर में तय पाया कि दोनों कमेटियों के नुमाइंदगान अपनी सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद कल तीसरा राउंड मुनाकिद करेंगे ताकि सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जा सके। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम का मैंडेट है कि सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, वतन अजीज़ को दरपेश माशी चैलेंजेस से निमटने और कौमी तरक्की के लिए इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं। उन्होंने ये बात लाहौर में खानेवाल से आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले रज़ा हयात हिराज पैनल के अरकान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर कही। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली रज़ा हयात हिराज और पंजाब असम्बली के अरकान अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज का पार्टी में खैर मकदम करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी मुश्किलात के हल में मुंतखब नुमाइंदों का ताउन अहमियत का हामिल होगा। रज़ा हयात हिराज, अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। और नाज़रीन, भक्कर से आज़ाद हैसियत में पंजाब असम्बली के नामुंतखब रुकन अमीर मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर से जरदारी हाउस में मुलाकात की और अपनी शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मदीन ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। आईनी दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करेंगे। मजीद तफसील बता रही हैं आयशा आफरीन अपनी इस रिपोर्ट में। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि जो मुल्क की बका के लिए बात करता है हम उससे ज़रूर बात करेंगे। उनका कहना था कि सिंध में वज़ीर आला के लिए नाम का अनकरीब ऐलान हो जाएगा और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि वज़ीर आला सिंध जे आला होगा। उन्होंने कहा कि जो भी हमसे बात करने के लिए आएगा हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि वो मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ दोस्ती अवाम ने निभाई है। हम मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए अगर नून मिलके आती है, बैठती है और कहती है कि जी हमें सपोर्ट करें, हम वज़ीर आज़म के लिए जाते हैं, अगर पीटीआई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही लोगों से बात करने में, तो फिर जो हमारे पास आया है हमें उसी को कहना पड़ेगा कि जी गो अहेड। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर लेंगे रिपोर्ट कि आप इस मुल्क की मईशत को कैसे ठीक कर रहे हैं, आप इस मुल्क के कारोबार को कैसे चला रहे हैं, आप इस मुल्क को मजबूत कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी शर्तें हैं जो कि हमने देखना है कि पूरी हो। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जमील सोमरो ने कहा कि बिलावल भुट्टो इलेक्शन मुहिम में हर जगह गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हर सूबे की आवाज़ बन रही है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले लोग कभी ये कहते हैं कि हमने 180 सीटें जीती हैं, कभी कहते हैं कि 150 सीटें जीती हैं और कभी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राबते में हैं, कभी कहते हैं कि राबते में नहीं हैं। और कभी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून से राबता नहीं करेंगे और कभी कहते हैं हुकूमत बनाएंगे, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोई धांधली नहीं हुई और फिर कहते हैं कि पंजाब में जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश और जहां हारे हैं वहां एहतजाज। उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सारे फॉर्म 45 ठीक हैं और पंजाब में जहां हारे हैं वहां के फॉर्म 45 सब जाली हैं। इन तमाम बातों से ज़हनी हालत का अंदाजा किया जा सकता है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा है कि वो मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानेंगे ज़ीशान अहमद खान से। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ये पाकिस्तान को बहरानों से निकालने का वक्त है और सियासी जमातों से तहम्मुल और सब्र की अपील करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान सबको मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की दावत देती है। मैं तमाम सियासी जमातों से, तमाम सियासी कुव्वतों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, ये तहम्मुल और सब्र के साथ साथ मामला फहमी का वक्त है और ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है, मसाइल पैदा करने का नहीं, मसाइल हल करने का वक्त है। बातचीत के दरवाजे इंतखाबात के बाद आप हम सबको दावत दे रहे हैं कि हम अपने दरमियान बैठकर ये तय कर ले एक कौमी एजेंडे पर, कौमी मफाहमती
कोई पैकेज तैयार कर ले जिसमें मईशत का मिसाक मईशत भी हो, मिसाक जमहूरियत भी हो, मिसाक सियासत भी हो, अमन और खुशहाली के बारे में भी मिलकर कोई फैसला कर ले। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची के अवाम ने एमक्यूएम पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है और हमें कराची से कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें मिली हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाया है, जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हमारी जमात ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। इंतखाबी नताइज पर हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस बारे में वाइट पेपर जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया, जिससे जमात की साख और बुनियाद मज़ीद मजबूत हुई। मुल्क में जमहूरियत के लिए सियासी क़यादत आगे बढ़े। जमात इस्लामी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही से डियाला जेल में मुलाकात की। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही में मोहब्बत का रिश्ता है। ये मुलाकात ख़ानदानी रिवायात के तहत हुई। तर्जुमान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही की सेहत के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन और फैमिली को तशवीश लाहिक थी। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक, चौधरी वजाहत हुसैन, मुंतहा अशरफ, चौधरी शाफे हुसैन भी शामिल थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बताया कि वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब हमारे उम्मीदवार होंगे। पंजाब में वज़ीर आला के लिए मियां असलम इकबाल उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बताया कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए आकिबुल्लाह उम्मीदवार होंगे। ताहम उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए अभी तक फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के नाम 2 दिन में सामने लाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात करेंगे। असद कैसर ने कहा कि हम असम्बली में बैठेंगे और जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि हमारी जमात आज भी शफाफियत के नज़रिए पर कायम है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती को खरीदने की पेशकश की गई और कहा गया कि पार्टी हमारे हवाले करके दुबई चले जाएं। इमरान खान साहब ने जो 22 साल जद्दोजहद थी, जो एक लमबंदी थी, एक सबबंदी थी कि दौंस-दांदी को डिस्करेज करेंगे, शफाफियत को प्रमोट करेंगे, तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी तवील सबबंदी के बाद, लमबंदी के बाद आज आप उधर ही आके खड़े हैं कि दौंस-दांदी की सियासत होगी, गुंडागर्दी की सियासत होगी, पैसे की सियासत होगी। अगर यही करना था तो फिर नज़रियाती लोगों को, बानी लोगों को रुस्वा क्यों किया? मुझे कहा गया कि आप हमें पार्टी सेल कर दें और आप दुबई शिफ्ट हो जाएं या इधर चल जाएं, या कह दें कि मैंने सियासत तलगी का ऐलान कर दिया है। ये टिकट फरोश, ये सियासत फरोश, ये इक़्तिदार फरोश, ये गड़ी फरोश, ये तमाम लोग जो ये ज़मीर फरोशी करने वाले हैं, तो मैं इनको डिफेंड कैसे करूँगा? नाज़रीन, हालिया आम इंतखाबात से मुतालिक गैलप सर्वे की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है। इंतखाबी नताइज वही रहे जिनकी पेशगोई 10 जनवरी को की गई थी। सर्वे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान के वोटों की शरह से मुतालिक पेशगोई की गई थी। गैलप रिपोर्ट के सर्वे से ये साबित होता है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं। इंतखाबी अमल के बाद बलूचिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, असेंबली में पार्टी पोजीशन और जोड़ तोड़ पर सबकी नजरें मरकूज हैं। कोयटा से इसरार अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान असेंबली की 51 हल्कों पर इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सर फहरिस्त है। PMLN और JUI 10-10 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए हैं। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए मुशावरतें तेज हो गई। ऐवान में तीनों जमातों की पोजीशन को देखते हुए पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की मखलूत इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान है। ऐवान में पहुंचने वाली दूसरी जमातों में BNP मेंगल, BNP अवामी, जमायत इस्लामी, अक़दो तहरीक, ANP और नेशनल पार्टी मुमकिन तौर पर ऐवान में अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। बलूचिस्तान असेंबली में खवातीन की 13 और अक़लियती 3 नशिस्तों के फैसले के बाद ऐवान जल्द आइंदा 5 साल के लिए कायदे ऐवान के इंतखाब का मरला भी कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा। इसरार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. نوجوانوں کی صلاحیتیں سامنے لانے کے لیے انہیں مواقع کی فراہمی ضروری ہے. اسلام آباد میں نیشنل آئیڈیاز بینک کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اداروں کی بہتر کارکردگی کے لیے ہر شعبے میں نئے ٹیلنٹ کا استعمال ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تعلیمی شعبے میں بہتر کارکردگی کی ضرورت ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی سے محمد شفیق خان کی قیادت میں ریڈ فاؤنڈیشن کے وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں صدر مملکت نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے خصوصی طور پر بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انسانی وسائل کی ترقی میں تعلیمی اداروں کا کلیدی کردار ہے. وفد نے صدر مملکت کو تعلیمی اور فلاحی شعبے میں ریڈ فاؤنڈیشن کی خدمات سے متعلق بتایا. فاؤنڈیشن ملک بھر میں 400 سے زائد اسکول اور کالجز چلا رہی ہے. صدر مملکت نے تعلیمی اور فلاحی شعبے میں ریڈ فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا. راولپنڈی اسلام آباد میں پانی کی فراہمی، صفائی کے انتظام اور فضلے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا. وزیر داخلہ ڈاکٹر گوہر اعجاز کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں متعلقہ محکموں کی جانب سے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اجلاس کو بتایا گیا کہ صفائی پر مامور 8000 کارکن روزانہ تقریباً 2300 ٹن کچرا ٹھکانے لگاتے ہیں. اس وقت جڑواں شہروں کو پانی کی 47% کمی کا سامنا ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی کی فراہمی اور صفائی بنیادی ضروریات ہیں. آئندہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے فیصلہ سازی وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ مربوط جامع اور مؤثر نظام وضع کرنا ہوگا تاکہ عوام کو معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں. اس موقع پر وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ زیر زمین پانی کی سطح میں بہتری کی توجہ مرکوز کرنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے قدرتی نالوں کی صفائی کو بھی یقینی بنانا ہوگا. نگران وفاقی وزیر داخلہ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے اسلام آباد میں FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بریف کیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ملکی سلامتی اور سیکیورٹی میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کا انتہائی اہم کردار ہے. انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ اور سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ تفتیش کاروں کی استعداد بڑھانا بھی انتہائی ضروری ہے. سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے ان کے خلاف آبزرویشنز حذف کرنے کا حکم دیا ہے. 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ججز کو کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف آبزرویشنز دینے میں محتاط ہونا چاہیے. آبزرویشن دینے سے قبل متعلقہ شخص کو نوٹس جاری کرنا قانونی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ نیب کے مطابق راجہ پرویز اشرف کے خلاف انکوائری میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا. لا اینڈ جسٹس کمیشن نے رواں سال جولائی سے دسمبر تک ملک کی مختلف عدالتوں میں دائر ہونے والے زیر التوا اور نمٹائے گئے مقدمات کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. اعلامیے کے مطابق زیر التوا مقدمات کی تعداد 3% اضافے کے ساتھ 22,60,000 ہو گئی ہے. گزشتہ 6 ماہ میں 23,80,000 مقدمات درج جبکہ 23 لاکھ مقدمات نمٹائے گئے. جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے میاں اسلم اقبال اور مراد سعید سمیت 11 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے ملزمان کو اشتہاری قرار دیا. پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان گرفتاری کے خوف سے روپوش ہیں. دوسرے ملزمان میں حامد رضا، اعظم خان سواتی، حافظ فرحت، امتیاز احمد شیخ، زبیر خان نیازی، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ اور سیاد خان شامل ہیں. ملزمان کے خلاف تھانہ نصیر آباد پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. سربراہ پاک بحری ایڈمرل نوید اشرف نے بحری مشق سیس پارک کے دوران بحری جہازوں کوسٹل اور کریک ایریاز کا دورہ کیا. 25 جنوری سے جاری اس مشق کا مقصد پاک بحریہ کی جنگی حکمت عملی کا تنقیدی جائزہ لینا ہے. نیول چیف نے ارماڑہ، کیٹی بندر اور شاہ بندر میں نیول تنصیبات کا مشاہدہ کیا. انہوں نے کھلے سمندر میں پاک بحریہ مشق کا جائزہ لیا اور پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دفاعی حکمت عملی اور جنگی تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا. ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں کی بے لوث لگن اور عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ دشمن کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینی عوام کا قتل عام بند کرانے کے لیے فوری مداخلت کرے. اسلام آباد میں معمول کی نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ رفح میں اسرائیل کے بے رحمانہ حملہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے عبوری حکم میں بیان کردہ عارضی اقدامات کی کھلی خلاف ورزی ہے. ترجمان نے کہا کہ کچھ ملکوں کی طرف سے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی فنڈنگ کو معطل کرنے کے فیصلے کو فوری طور پر واپس لینے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مزید اموات اور قحط سے متاثر ہونے اور مناسب طبی امداد کی عدم دستیابی کو روکنے کے لیے غزہ کا محاصرہ ختم کیا جانا چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں کشمیری سیاسی کارکنوں اور جماعتوں کو دھمکانے اور ظلم و ستم کا سلسلہ بند کرے.
मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें। गजा के जनूबी शहरों रिफ़ा और खान यूनस पर इसराइल की हमले शिद्दत से जारी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 87 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी सिहूनी हमलों में शहदा की तादाद 28,663 हो गई है, जबकि काबिज़ फ़ौज के हमलों में अब तक 68,400 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। खान यूनस और रफा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। काबिज़ फ़ौज ने जनूबी दीवार गिराने के बाद खान यूनस के नसर हस्पताल का मुहासरा किया और भारी हथियारों और टैंकों से बमबारी की। इसराइली दहशतगर्दी की नई लहर में तिब्बी अमले और मरीजों की जान को शदीद खतरा है। इसराइली फौजी अस्पताल में घुसकर निहत्ते मरीजों और तिब्बी अमले को निशाना बना रही है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि सिहोनी हमले की वजह से डॉक्टर्स और मरीज महसूर हैं। काबिज़ फ़ौज की जानिब से शहरियों को एक बार फिर रफ़ा शहर छोड़ने का हुक्म दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रफ़ा पर इसराइली बमबारी की वजह से मकामी लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है, जिसके बाद बड़ी तादाद में शहरी दीरुल बला और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। आलमी इदारे के मुताबिक गुंजान आबाद शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइल के मज़ालिम जारी हैं। काबिज़ फ़ौज ने मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों के घर मिस्मार कर दिए हैं। सिहोनी फोर्सेज तलाशी की कार्रवाइयों के बहाने फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए रफ़ा में इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़राए आज़म की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में इसराइल को खबरदार किया गया है कि तौसीशुदा फौजी ऑपरेशन तबाहकुन होगा। शहरियों के जाने के लिए कोई और जगह नहीं। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की फौरी ज़रूरत है। रफ़ा में इसराइली फोर्सेस की ज़मीनी कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश करते हुए कहा गया है कि शहर में 15 लाख फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। फौजी कार्रवाई से फ़लस्तीनी शहरियों पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। इसराइल इस रास्ते का इंतखाब ना करे। तीनों मुल्कों के वज़राए आज़म एंथोनी अल्बानी, जस्टिन ट्रूडो और क्रिस्टोफर लेक्सन ने अपने दस्तखतों से जारी बयान में कहा कि इसराइल को आलमी बरादरी और अपने दोस्तों की बात सुननी चाहिए। ओटावा में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात में भी कनाडा के वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। जर्मनी, फ्रांस, तुर्की और मिस्र ने भी इसराइल से रफ़ा में जारहियत बंद करने पर जोर दिया है। फ्रांसीसी सदर ने टेलीफोन कॉल पर इसराइली वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि गजा में अमवात की तादाद नाकाबिल बर्दाश्त और वहाँ जंगी कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। लेबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए हैं। 2 रोज़ में लेबनान के जनूबी सरहदी इलाके पर बमबारी से जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई है। हुकाम के मुताबिक इसराइल ने जनूबी शहर नबाती में रिहायशी इलाके पर शदीद बमबारी की, जिससे मुतादिद मकानात मुनहदिम हो गए। एक बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। गजा जंग के बाद इसराइल का लेबनान पर यह शदीद तरीन हमला है। लेबनान के हिलाल अहमर के मुताबिक सरहदी शहर नबाते पर इसराइली फ़ज़ाइया के बमबारी से 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि सवाना में हमले से 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हिलाल अहमर ने बताया कि तबाहशुदा इमारत के मलबे तले दबे होने की वजह से अमवात में इजाफे का खदशा है। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल को हमले का जवाब दिया जाएगा। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे SIA ने श्रीनगर और जनूबी कश्मीर के अजला में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये छापे खास तौर पर श्रीनगर के इलाकों रामबाग, छानपुरा, रावलपुरा और जनूबी कश्मीर के अजला इस्लामाबाद, पुलवामा, शुपियाँ और कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में मारे गए। ये छापे मकबूजा इलाके में कश्मीरी अवाम को हिरासा और खौफजदा करने की मोदी हुकूमत की मुहिम का हिस्सा हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से जारी एक बयान में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। उनका यह बयान जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने श्रीनगर में जारी किया है। बयान में कहा गया है कि शबीर शाह की साबित कदमी जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ इनकी मुज़ाहमत का वाज़ेह सबूत है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने श्रीनगर में जारी एक बयान में जेल में इलाज मुआलजे की सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से मोहम्मद यासिन मलिक की गिरती हुई सेहत पर सख्त तशवीश का इज़हार किया है। यासिन मलिक दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा बशीर इंदराबी, यास्मीन राजा, फरीदा बहनजी और फारूक अहमद तौहीदी ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में आज़ादी पसंद रहनुमा गुलाम मोहम्मद बुल्ला को उनके 49वें यौम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। गुलाम मोहम्मद बुल्ला को भारतीय पुलिस ने 1975 में श्रीनगर सेंट्रल जेल में हिरासत के दौरान शहीद कर दिया था। भारतीय किसानों का 13 फरवरी को शुरू होने वाला दिल्ली चलो मार्च जारी है। 2 साल कबल भी नई दिल्ली की सरहदों पर किसान अपने मुतालबात के लिए कई महीनों तक सरापा एहतजाज रहे। किसानों को रोकने के लिए भारतीय पुलिस ने दिल्ली की सरहदों पर बैरियर्स लगा दिए हैं और 1 माह के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं, जो हमें जो नजर आ रहा है।
किसान मरता क्या नहीं करता, उसकी मजबूरी है। जब कोई देना नहीं चाहते हैं, लंबा समय 3 साल हो गया, जो मांगी थी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे? कितना हमारी इकोनॉमी में इसका नुकसान हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं है। महीने महीने पर फार्मर बैठे रहते हैं यहाँ पे। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है। हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान तरक्की करने के बजाय मुख्तलिफ शोबों में तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की गैर मुल्की इमदाद में तेज़ी से कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से सेहत आमा का शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ है। टीबी शोबे के ज़वाल पसीर होने से अफगान आबादी का बड़ा हिस्सा बीमारियों का शिकार हो चुका है। अफगानिस्तान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से आलमी इदारों तक रसाई और बैरूनी रकूम मुनक़ता हो गई हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक गुर्बत के बाइस अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी ना ही अपने इलाज पर तवज्जो दे सकती है और ना ही उनके पास अद्वियात खरीदने की सकत है। अफगानिस्तान में गैर मामूली इक़्तिसादी बहरान और अफगान अवाम को इलाज की सहूलियात की अदम दस्तयाबी से लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ चुकी है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए बेहतरीन तरबियत के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तमाम निजी टूर कंपनीज़ को हज कोटा तफवीज़ कर दिया गया है। हज के लिए निजी टूर ऑपरेटर्स कल से 24 फरवरी तक बुकिंग शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि रवां साल तरबियती प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं ताकि हुजाज को कोई भी मसला दरपेश न आए। कौमी वर्सा और सकाफत के निगरां वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने कहा है कि जापान की सकाफत कदीम और बेहतरीन रवायात पर मबनी है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में जापान के सिफारत खाने के ज़रिए एहतमाम नुमाइश की तकरीब से गुफ्तगू करते हुए जमाल शाह ने कहा कि इस नुमाइश के ज़रिए जापान की तहजीब और सकाफत को पाकिस्तान में पजीराई मिलेगी। नुमाइश में जापान की सकाफत और कदीम रवायात के मुतालिक मुख्तलिफ बर्तन, घरेलू नुमाइश की चीज़ें और मुख्तलिफ अशिया रखी गई हैं। नुमाइश 29 फरवरी तक जारी रहेगी। पीटीवी ड्रामा एंड फिल्म एकेडमी में पाकिस्तान टेलीविजन की खवातीन मुलाजमीन की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप हुई। सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शाहिरा शाहिद और MD PTV सैयद मुबशिर तौकीर शाह ने PTV एकेडमी की काविशों को सराहा। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शाहिरा शाहिद ने PTV एकेडमी में वॉल ऑफ फेम का इफ्तिताह किया और एकेडमी का दौरा किया। PTV एकेडमी में खवातीन के लिए खसूसी सेल्फ ग्रूमिंग ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने कहा कि खवातीन जिस शोबे में चाहें अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। PTV बहैसियत इदारा उनकी सलाहियतों को महमेज करने के लिए काम करता रहेगा। मेरे यहाँ होने का आपको फ़ायदा ये है कि मेरा ख्याल है मैं पहली चेयरपर्सन हूँ जी फीमेल, और मैंने थोड़ी देर MD का भी रोल अदा किया सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर खातून का नाम आ जाए बोर्ड पे। सो आप फाइट करें अपने राइट के लिए। आपको हजरात से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप को अपने आप को मनवाना है। MD PTV सैयद मुबशिर तौकीर शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तरबियती सेशन का मकसद खवातीन की सलाहियतों को जिला बख्शना है। I believe you must have had a productive session here at the academy, and I'm glad the academy is very active regarding holding all these short courses and like all, and that would continue. तकरीब के इख्तिताम पर तरबियत हासिल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। MD PTV ने अकेडमी में परचम के लिए बनाए गए मकाम का भी इफ्तिताह किया। PTV अकेडमी के जनरल मैनेजर इमरान सदीकी ने कहा कि खवातीन के लिए खसूसी ट्रेनिंग से उनकी सलाहियतों को निखारने में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो यह है कि हम अपनी खवातीन को ग्रूम करें। जो हमारे खवातीन हैं जो आती हैं ऑन जॉब, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो। हमने कोशिश की कि PTV की जो खवातीन हैं हम उनको प्रोफेशनली ग्रूम करें। हाउ शुड विमेन ड्रेस अप। पाकिस्तान टेलीविजन सिनफी इम्तियाज के खात्मे और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर खसूसी तवज्जो दे रहा है। नाजरीन, PTV एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है कि इदारे ने हमेशा अपने मुलाजमीन के इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए भरपूर इक़दामात किए हैं। ऐसे में खवातीन के लिए मखसूस 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप PTV एकेडमी की एक बेहतरीन काविश है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ग्रीन टाउन लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और यूनिट के अफसरान और अमले से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला को मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबे में मुनज़्ज़म जराइम और गैंग्स के खात्मे के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मनसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्से देखे और काम के मायार का जायजा लिया। 8.8 किलोमीटर तवील मनसूबे में 2 इंटरचेंज, 8 ब्रिज और 2 सबवे हैं और इस पर 16 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आई है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर मनसूबे की तकमील से इलाके में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन ने कमिश्नर DI खान के दफ्तर में मुनक़िदा इजलास की सदारत की। इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। निगरान सूबाई वज़ीर तामीरात और मुआसलात और ज़िला इंतज़ामिया के आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जारी तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि दोबारा पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीगुर रहमान से मोहतसिब पंजाब रिटायर्ड मेजर आज़म सुलेमान ने लाहौर में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मोहतसिब पंजाब का इदारा लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया करने का आसान और मौसर जरिया है। उन्होंने कहा कि मोहतसिब के ऑफिस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग का क़याम अमल में लाया गया है। मोहतसिब पंजाब ने कहा कि पिछले 1 साल में साइलिन की तरफ से रिकॉर्ड 35,000 शिकायत को निपटाया गया है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मंदुखेल ने कहा है कि उनकी जमात ने सूबे में आम इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। मीर जाम कमाल खान के हमरा कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बलूचिस्तान से 10 सूबाई और 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे। मीर जाम कमाल का कहना था कि सूबे में हुकूमत कायम करने के लिए तमाम जमातों से बातचीत करेंगे। वज़ारत आला के लिए नामजदगी का फैसला मरकज़ी क़यादत करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी सनत व पैदावार के अजलास खालदा हतीब की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी ने स्टील मिल्स की मसाजिद से उलमा की बरतरफी, तनख्वाहों की अदम अदायगी और मसाजिद की बंदिश पर अफसोस का इज़हार करते हुए मुलाजमीन की बहाली और उन्हें दरपेश मसाइल के फौरी हल की सिफारिश की। इजलास में पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी से मुताल्लिक मामलात का भी जायजा लिया गया। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम गंगा चोटी की, जहाँ पर स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। तफसील अदील अहमद खान से जानिए। आज़ाद कश्मीर के महकमा सियाहत, खेलो सकाफत, निजी अदारे MTBC और पाक फौज के इश्तराक से आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और जहलम वैली के संगम पर वाक़े मशहूर सियाहती मकाम गंगा चोटी के दामन में चौथे स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत सियाहत और खेलों के शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के आगाज में रस्साकशी, गतका और निंजा के शानदार मुजाहरे किए गए। फेस्टिवल का मकसद आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान मुंजमद सियाहती सरगर्मियों की बहाली और फ़रोग़ है। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ये आपके जो विंटर टूरिज्म है उसको प्रमोट करेगा मजमूई तौर पे पूरे कश्मीर में। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्कीइंग के मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से 37 स्कीयर्स भरपूर एक्शन में नजर आएंगे। आइस हॉकी और इस किस्म के दीगर खेल भी विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का हिस्सा थे, जिनका इनेकाद मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुमकिन न हो सका। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा और इख्तितामी तकरीब एतवार के रोज मुनक्कद होगी। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गंगा चोटी, जिला बाग, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब दुनिया सुखनवरी के उस महताब की मानद हैं जो गुज़िश्ता 2 सदियों से अदब के उफ़क़ पर पूरी आबोताब से चमक रहा है। मिर्ज़ा गालिब की 155वीं बरसी के मौके पर उनकी अदबी खिदमत का अहाता किया है। लाहौर से शुमाइला शब्बीर ने अपनी इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। शायरी में शऊर, हकीकत पसंदाना अंदाज और जज्बात का जुदागाना तरीके से इजहार मिर्जा गालिब की शायरी के नुमाया औसाफ हैं। 27 दिसंबर 1796 को आगरा में पैदा होने वाले गालिब ने कम उम्री में ही शेर गोई शुरू की। 13 बरस की उम्र में रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने के बाद दिल्ली आ गए। ये वो वक्त था जब दिल्ली में उस्ताद ज़ौक़ और मोमिन जैसे शायरों का तूती बोलता था। इब्तिदा में मिर्जा गालिब को खुद को मनवाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर मुनफरिद अंदाज़े बयां और अछूते लबो लहजे के बाइस उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वो दिल्ली के हर मुशायरे की रौनक होते। उन्हें नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क जैसे खिताबात से भी नवाजा गया। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए।
غالب کسی ایک عہد کے شاعر نہیں بلکہ ان کی خوبصورت شاعری ہر زمانے اور ہر دور کی عکاسی کرتی ہے۔ غالب کو پڑھنے والا نہ صرف ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتا ہے بلکہ غالب کی شاعری اس پر زندگی کے اسرار و رموز کھول دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں تنوع بھی ہے اور چاشنی بھی، طنز و مزاح بھی ہے اور شکایت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ادب کے شائقین کے لیے غالب کے سحر سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ غالب کی شاعری کا ہی کمال ہے کہ 1.5 صدی گزر جانے کے باوجود بھی ان کا کلام تر و تازہ ہے۔ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ بصارت سے محروم افراد کے لیے اسلام آباد میں ہائکنگ کا اہتمام کیا گیا جس میں 1000 کے قریب افراد نے شرکت کی۔ تفصیل وقار حیدر سے جانیے۔ اسلام آباد ہائکنگ کے حوالے سے ایک جانا پہچانا شہر ہے، یہاں پہ ٹریلز بھی ہیں 1 2 3 4 5 اور 6۔ آج یہاں پہ ہم پہنچے اور ہم نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نابینا افراد ہیں ان کو ٹریل 2 کے اوپر لے کے آئے ہیں اور آج وہ ہائک کریں گے۔ کیسے ہائک کریں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہیں بصارت سے محروم افراد جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں پہاڑوں کی سیر کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کے پرفضا مقام ٹریل 2 پر یہ نابینا افراد ہائکنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈز کے عہدیدار کہتے ہیں نابینا افراد کے لیے ایسی سرگرمی ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس جو ہے پچھلے 5 سالوں سے نابینا افراد کی ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرواتا ہے۔ آج بھی ہم 1000 کے قریب لوگوں کو پورے پاکستان سے نابینا افراد کو یہاں پہ ہائکنگ کروانے جا رہے ہیں ٹریل 2 پہ۔ یہ ہماری ایک اب ہسٹری بن رہی ہے، جو 5 سال کا پیریڈ ہے جو بتایا انہوں نے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور اس سے جو ہمارا ایکسپیرینس آیا ہے نا بڑا ہی پازیٹیو اور بڑا اچھا ہے۔ اس سرگرمی میں پاکستان بھر سے نابینا افراد شریک ہوئے، مختلف تنظیموں نے معاونت بھی کی۔ بصارت سے محروم افراد خوش نظر آتے ہیں۔ یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایز اے بلائنڈ پرسن، ایک ہائکنگ کرنا اور خود سے انڈیپینڈنٹ موو کرنا۔ تو ہم پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بلائنڈ لوگ اگر آپ ان کو ہیلپ کریں گے تو یہ ہر میدان میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بلائنڈ آتے ہیں تو ان کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، ان کی لائف، ان کی جینے کی جو امنگ ہے وہ یعنی کہ بڑھتی ہے، امپروو ہوتی ہے۔ مارگلا کے دامن میں نابینا افراد کے لیے ایسی صحت مند سرگرمی کسی نعمت سے کم نہیں۔ اگر ان افراد کا تھوڑا سا ساتھ دیا جائے تو یہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مرگی کے مرض سے آگاہی کے لیے چلڈرن اسپتال لاہور میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا احوال بتا رہی ہیں ازکا مقصود۔ مرگی ایک ایسا اعصابی مرض ہے جس کے شکار مریض کو تشنج اور شدید جسمانی جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم بر وقت تشخیص کی صورت میں اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ مرگی کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں مرگی سے متعلق آگاہی پھیلانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر 1 لاکھ میں 100 بچے مرگی کے مرض کا شکار ہیں۔ لوگوں کو جو مرگی کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں ان کی سٹگما ختم کیا جائے اور ان کو ایک نارمل لائف کی اپرچونٹی دی جائے، اور نارمل سکولز، نارمل دفاتر میں وہ جائیں، اور اگر وہ 3 سال مرگی کا کوئی دورہ ان کو نہیں پڑتا کسی بھی دوائی سے تو وہ ایون ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں۔ بر وقت تشخیص اور درست تشخیص ہی اس بیماری سے چھٹکارے کا ایک جو بنیادی نقطہ ہے، اور اس 21ویں صدی میں تقریباً ہم 70 سے 80% مریض بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی ادویات کے ساتھ 3 سے 4 سال استعمال کے بعد مکمل طور پہ ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سیمینار سے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عاطف بن اکرم اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ شالمار ہسپتال کے زیر اہتمام مرگی کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز اور عام شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ مرگی کے مرض سے وابستہ توہمات کو نظر انداز کر کے جدید علاج سے استفادہ کیا جائے تو اس مرض سے متاثرہ افراد بھی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ 5 جنوری سے 11 فروری کے درمیان 2 ارب روپے سے زائد کی رقم وصول کی گئی اور 144 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پشاور نئے ضم شدہ اضلاع سے 42 کروڑ روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ پشاور سے 28 افراد بھی گرفتار کیے گئے۔ متعلقہ حکومتی ادارے بجلی چوری کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔
عالمی منظرنامے سے خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے یوکرین پر روس کے حملے میں ایک خاتون ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق روس نے شمال مشرقی شہر چگایوف پر 26 میزائل فائر کیے جس سے کئی رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ایئر ڈیفنس نے 13 میزائلوں کو ناکارہ بھی بنایا۔ کورسی کے علاقے میں ایک اور حملے میں ایک آئل ڈپو بھی تباہ ہو گیا۔ اور امریکی شہر کینسس میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ واقعہ سپر باؤل کی فتح پر جشن منانے کے دوران پیش آیا۔ اس وقت مرکز میں ہزاروں افراد جمع تھے۔ کینسس سٹی چیفز کے کھلاڑی ابھی سٹیج پر ہی موجود ہی تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ پولیس سربراہ نے بتایا کہ زخمی 8 بچے بھی شامل ہیں۔ واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے ہفتے سے 21 فروری کے دوران ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی نوید سنا دی ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ 17 فروری کو ملک میں داخل ہوگا۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا، سوات، ایبٹ آباد، کرک میں موسلادھار بارش اور برف باری متوقع ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات میں وقفے سے موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ 18 اور 19 فروری کو کوئٹہ، زیارت، چمن میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بارشوں اور برف باری کے باعث کشمیر، خیبر پختونخوا اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے سیاحوں کو محتاط اور تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی اضلاع میں موسم شدید سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے لیہ کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو میں -7، کالام -6، استور -5، جبکہ گلگت میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 8، کراچی 14، پشاور 4، جبکہ کوئٹہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فاسٹ بولر حارث رؤف کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل ہونے سے انکار کی تحقیقات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ پی سی بی کی بنائی گئی کمیٹی کی طرف سے سماعت مکمل ہونے کے بعد حارث رؤف کا سینٹرل کانٹریکٹ 1 دسمبر 2023 سے ختم کیا گیا اور انہیں 30 جون 2024 تک کسی بھی غیر ملکی لیگ کے لیے این او سی جاری نہیں کیا جائے گا۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ انصاف کے اصولوں کے مطابق حارث کو سماعت کا موقع فراہم کیا تھا، تاہم ان کا جواب غیر تسلی بخش پایا گیا۔ بطور ڈائریکٹر کرکٹ محمد حفیظ کا پاکستان کرکٹ بورڈ میں کردار ختم ہو گیا۔ پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بورڈ محمد حفیظ کی خدمات پر ان کا شکر گزار اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ بحیثیت ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کے دور میں پاکستان کو دورہ آسٹریلیا میں 3-0 اور نیوزی لینڈ میں 4-1 سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان سپر لیگ کے نویں ایڈیشن کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ لاہور میں ٹورنامنٹ کے 9 میچز کھیلے جائیں گے۔ پی ایس ایل کا آغاز 17 فروری سے ہوگا۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں معظم الدین۔ پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن کا آغاز 17 فروری کو لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی شائقین کرکٹ کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا اور ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے اور شائقین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ قذافی اسٹیڈیم میں داخلے کے لیے سیکیورٹی کے 4 حصار قائم کیے گئے ہیں اور 7,000 کے قریب اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اسٹیڈیم کے اطراف میں اضافی کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں
जबकि सेफ सिटी के कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए शहरियों को मुतबादिल रूट्स की फरहमी दी जाएगी। इवेंट के लिए टीमों की तैयारियां और उनके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। PSL दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें LCCA ग्राउंड और NCA में प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हुए हैं। मेगा इवेंट का इफ्तिताई मैच कज़ाफी स्टेडियम में दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 17 फरवरी को खेला जाएगा। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। PSL 9 के लिए मुल्तान में भी तैयारियां जारी हैं। इस बार मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट को कामयाब बनाने के लिए की जाने वाली तैयारियों के बारे में जानते हैं फरहान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार। PSL क्रिकेट के 9वें एडिशन में मुल्तान सुल्तान इतवार को कराची किंग्स से टकराएगी। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड और पिच की तैयारियों के साथ साथ शायकीन क्रिकेट की सहूलियात के लिए किए जाने वाले इक़दामात आखिरी मराहिल में हैं। मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ियों की जानिब से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। शायकीन क्रिकेट अपने हीरोज और पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के लिए बेकरार हैं। तो हम मुल्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड कराची भी हमारी पाकिस्तान की ही टीम है, तो वी विल लुक फॉरवर्ड कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि अपने दोस्तों के साथ जाएंगे और गैदरिंग करेंगे, वहाँ पर जाकर मैचेस देखेंगे। सारी टीम पाकिस्तान की है, तो जो भी जीते तो जीत तो पाकिस्तान की ही होगी। मुल्तान सुल्तान को ऑब्वियसली हम लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फैमिली के साथ जाएंगे वहाँ। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और शायकीन की सहूलियात के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रूट प्लान जारी कर दिया गया है। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए फातिमा जिन्ना टाउन में पार्किंग का इंतजाम किया गया है, जहाँ से शटल सर्विस के जरिए शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में लाया जाएगा। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। राजकोट में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले रोज पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बना लिए। भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने सेंचुरियां स्कोर की। रोहित शर्मा ने 131 रन की इनिंग्स खेली, जडेजा 110 रन बनाकर नॉट आउट हैं। डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने 62 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के मार्क वुड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। हैमिल्टन में दूसरा टेस्ट जीतने के लिए न्यूजीलैंड को मजीद 227 रन और जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों की जरूरत है। तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग्स में 235 रन बनाकर आउट हो गई और न्यूजीलैंड को 267 रन का हदफ मिला। जनूबी अफ्रीका के डेविड बेरिंगम ने 110 रन की इनिंग्स खेली। मेजबान टीम की जानिब से विलियम ओरोर्की ने 5 विकेटें हासिल की। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना लिए। टेस्ट की पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका ने 242 और न्यूजीलैंड ने 211 रन बनाए थे। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।